Dear students, in the last lectures, we have started the part and concept of reciprocal lattice. And in these lectures, we have studied that reciprocal lattice is nothing but a periodic and a regular arrangement of points in the reciprocal space. And reciprocal space is basically derived from this real space by changing the planes into its perpendicular vectors, and the magnitude of those vectors are basically the reciprocal of the interplanar spacing of the planes in the direct lattice. And we have seen that, likewise the lattice points and the arrangement of lattice points in the direct lattice, the arrangement of points in the reciprocal lattice is also regular. Is also regular. Then we have seen that this reciprocal lattice, it plays a very important role in determining the crystal structure, because whenever X-rays falls on a crystal, they interact with the electrons of the crystal, and hence the K vector changes. The change in this K vector is basically an integral multiple of reciprocal lattice vector. And by knowing the reciprocal lattice vector, we can derive the vectors of the direct lattice or direct lattice vectors, which are named as basis vectors. Basis vectors. So in the further section and in the same series, today we will do the properties of this reciprocal lattice. Whenever there is a lattice, there are two lattice associated with that. कोई भी अगर क्रिस्टल होगा उसके साथ दो लैटिस एसोसिएट करेंगी. एक लैटिस होगी जो डायरेक्ट लैटिस होगी, जो रियल स्पेस में होगी, और जो दूसरी लैटिस होगी वो रेसिप्रोकल लैटिस होगी जो कि के स्पेस में होगी, जिसको हम रेसिप्रोकल स्पेस भी बोलते हैं. वो के स्पेस में होगी. ठीक है. और हमने देखा था कि जो रेसिप्रोकल लैटिस के वेक्टर्स हैं उनसे हम डायरेक्ट लैटिस वेक्टर्स को डिराइव कर सकते हैं, या डायरेक्ट लैटिस वेक्टर से सॉरी हम रेसिप्रोकल लैटिस को डिराइव कर सकते हैं. ये हम आज देखेंगे कि इफ रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स आर नोन, देन वी कैन डिराइव द डायरेक्ट लैटिस वेक्टर्स आल्सो, एंड वी विल सी द relationship is same as that of reciprocal lattice with direct lattice vectors and the डायरेक्ट lattice vectors with reciprocal lattice vectors. तो दोनों का जो आपस में रिलेशन रहेगा that will be same. So moving on the properties, we can say that for every real lattice, obviously there will be a reciprocal lattice. Each point in the reciprocal lattice that corresponds to a set of parallel planes in direct lattice. Then उसके बाद है कि अगर हमारे पास small a, small b, small c, which are the lattice parameters in direct lattice, if they are orthogonal, then capital A, capital B, capital C, which are lattice parameters in reciprocal lattice, they will also be orthogonal. In real lattice, small a, b, c defines the primitive unit cell vectors. In the same way, capital A, capital B, capital C defines the primitive unit cell vectors in the reciprocal space. But reciprocal unit cell is not necessarily be a paralleloparallel. वो जरूरी नहीं है कि paralleloparallel होगी, वो किसी और शेप की भी हो सकती है. अगर हम स्मॉल a को रोटेट करेंगे, अगर हम डायरेक्ट लैटिस के किसी वेक्टर को रोटेट करेंगे, then there will be rotation in the reciprocal lattice vector also. Means अगर स्मॉल a रोटेट होगा तो कैपिटल A भी रोटेट होगा, दोनों में रोटेशन इकट्ठा आएगा. अब आगे दो ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और जिनके बेस पे हम अभी तक सारी बात करते आए हैं, लेकिन अभी तक हमने उनका कोई प्रूफ नहीं किया. अब हम उनका प्रूफ करेंगे. तो जो पहली प्रॉपर्टी है जिसको हमें डिराइव करना है, और प्रॉपर्टीज की लिस्ट में ये पांचवी या छठी प्रॉपर्टी जो हम आज बात कर रहे हैं, वो है कि अगर हम डिफाइन करें कि जो G है, जिसको हम रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर बोलते हैं, एंड विच इज गिवन बाय HA प्लस KB प्लस
LC is a reciprocal lattice vector, then we have to prove that this G will be perpendicular to an HKL plane. ये हमें प्रूव करना है कि ये इसके परपेंडिकुलर होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक डायरेक्ट लैटिस के अंदर हम ए बी सी जो हमारे एक्सिस हैं वो हम ड्रा करेंगे, और सपोज कोई प्लेन है जो HKL प्लेन है, वो सपोज ए बी सी को किन पॉइंट्स पे कट करता है। ये सपोज ये हमारे पास कोई प्लेन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो HKL प्लेन है। ये प्लेन हमारा है HKL प्लेन, HKL प्लेन, ठीक है। और अगर ये HKL है तो ऑब्वियसली ये हमारे पास जो लेंथ आएगी वो a/h होगी, ये जो लेंथ होगी वो b/k होगी, और ये जो लेंथ है वो c/l होगी। हमने पहले भी किया है, कि जो लेंथ है ये a/h होगी, ये b/k होगी, और ये c/l होगी अगर HKL ये प्लेन है, अगर ये प्लेन है, ठीक है। तो हम मानते हैं कि सपोज A को ये कट करता है P पॉइंट पे, इसको मैंने कह दिया Q पॉइंट, इसको मैंने कह दिया R पॉइंट, और जो ओरिजिन है इसको मैंने कह दिया O पॉइंट। नाउ लेट अस सपोज दिस OP, वेक्टर OP क्या होगा, वेक्टर OP विल बी अगर हम बात करें तो वेक्टर दिस OP इट विल बी a/h। अब मैं वेक्टर की टर्म में बात कर रहा हूं तो ये वेक्टर की टर्म में आ जाएगा a/h। सिमिलरली दिस OQ it will be b/k, and this OR it will be c/l। अब सपोज मैं वेक्टर निकालता हूं। एक्चुअली मैं आपको पहले ये बता देता हूं कि हम क्या कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। आपने वेक्टर्स के अंदर और मैथमेटिक्स के अंदर बड़ी डिटेल में की होगी ये चीजें। अगर हमें कोई भी वेक्टर है वो किसी प्लेन के परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो हम क्या करते हैं, हम तीन नॉन कोलिनियर वेक्टर्स कंसीडर करेंगे जो इस प्लेन में हो, और हम जो हमारा वेक्टर है उसको उन तीनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर प्रूव कर देंगे। अगर कोई भी वेक्टर तीन नॉन कोलिनियर वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है, और अगर वो तीनों नॉन कोलिनियर वेक्टर्स एक प्लेन में हैं, तो वो जो वेक्टर है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर। नाउ दिस PQ, QR and RP, these three vectors contains in this HKL plane। obviously हम पहले ये वेक्टर निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे कि जो G है G डॉट PQ, G डॉट QR, G डॉट RP। और अगर ये हमारे डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो G है G इन तीनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। अगर तीनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा, तीनों वेक्टर हमारे नॉन कोलिनियर हैं और एक ही प्लेन के अंदर हैं, तो इसलिए ये अगर तीनों के परपेंडिकुलर होगा तो अल्टीमेटली जो G है वो HKL प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, HKL प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ये हमें करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं OP, तो अब निकालो PQ क्या होगा, OQ माइनस OP, ठीक है ना। इसी तरह हम अगर बात करें PQ हमारे पास आ गया QR की, QR क्या होगा OR माइनस OQ, और इसी तरह अगर हम बात करें RP की तो वो क्या होगा OP माइनस OR माइनस OQ माइनस OP मतलब क्या है B/K माइनस OP क्या है A/H, ये इसके बराबर है। ये हमारा किसके बराबर है, OR किसके बराबर है C/L माइनस OQ किसके बराबर है B/K, और ये किसके बराबर है, ये है हमारा OP A/H माइनस OR है माइनस C/L, ठीक है। नाउ वी विल डिराइव, अब हमारी इसी जरूरत थोड़ी सी खत्म हो गई है, मैं इसको रब कर देता हूं, और तो मेरे पास
ये आ जाएगा जी डॉट पी क्यू। जी डॉट पी क्यू क्या होगा? जी इज एच ए प्लस के बी प्लस एल सी डॉट पी क्यू बी बाई के माइनस ए बाई एच। डॉट प्रोडक्ट लेंगे, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? ये होगा एच बाई के ए डॉट बी प्लस के बाई के बी डॉट बी प्लस एल बाई के एंड सी डॉट बी माइनस एच बाई एच ए डॉट ए माइनस के डॉट एच बी डॉट ए एंड माइनस this L by H and C dot A. C dot A. अब हमने पिछले लेक्चर के अंदर किया था, जब हमने कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी ड्राइव किया था, तो हमने वहां पे देखा था कि इसके अंदर ए डॉट ए इज इक्वल टू बी डॉट बी इज इक्वल टू सी डॉट सी दैट इज इक्वल टू 2 पाई एंड दिस ए डॉट बी is equal to a dot c equals to b dot a equals to b dot c equals to 0। अगर खुद वाले से ही मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर 2 पाई है, और अगर दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं डॉट प्रोडक्ट के साथ तो आंसर 0 है। अगर हम इन प्रॉपर्टीज का यूज करें और इसके अंदर पुट करें तो हम ये देखेंगे आंसर क्या होगा? 0 प्लस 2 पाई प्लस 0 माइनस ऐसे एच कैंसल 2 पाई माइनस 0 2 पाई माइनस 2 पाई 0 आंसर विल बी 0। आंसर विल बी 0। तो यहां से क्या आया मेरे पास? यहां से आ गया दिस जी डॉट पी क्यू इट इज 0। इसका मतलब जो जी वेक्टर है वो पी क्यू के परपेंडिकुलर है, पी क्यू के परपेंडिकुलर है। इन द सेम लाइन अगर मैं जी डॉट क्यू आर निकालूं तो सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे ऑन द सेम लाइन। सिमिलरली मेरे पास क्या आएगा? दिस जी डॉट क्यू आर इट विल बी 0 एंड दिस जी डॉट आर पी इट विल बी 0। और अगर ये तीनों 0 हैं और हमें पता है कि ये तीनों नॉन लीनियर है, एक ही प्लेन में आते हैं, तो इन तीनों प्रॉपर्टी से ये प्रूव होता है कि अल्टीमेटली जो G है इट इज परपेंडिकुलर टू दिस HKL प्लेन, दिस HKL प्लेन। यही हमें प्रूव करना था कि अगर कोई G वेक्टर, जो अभी तक हम एज्यूम करके चल रहे थे कि जो G वेक्टर है, जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है, वो उसकी जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी नॉर्मल टू HKL प्लेन, दैट विल बी नॉर्मल टू HKL। तो यहां से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। एक सेकंड प्रॉपर्टी और है रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर की, और वो प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये तो थी डायरेक्शन की कि उसके नॉर्मल होगी। हमने अभी तक आपको यही बताया था जब रेसिप्रोकल लैटिस की हम बात करते थे कि रेसिप्रोकल लैटिस का जो वेक्टर है दैट विल बी परपेंडिकुलर टू HKL प्लेन। और दूसरी प्रॉपर्टी मैंने बताई थी जो रेसिप्रोकल लैटिस का वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड है that is reciprocal to interplanar spacing, that is reciprocal to interplanar spacing। इसका मतलब जो दूसरी प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी हमें प्रूव करनी है वो करनी है कि जो G वेक्टर है इसका जो मैग्नीट्यूड है that is proportional to D of HKL। हम यही लेके चले थे ना कि रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर हम जो पॉइंट्स हैं अगर किसी को ओरिजिन मान के हम ड्रा करते हैं तो उनकी जो डायरेक्शन है दैट विल बी परपेंडिकुलर टू HKL प्लेन, और उनका जो मैग्नीट्यूड, उनकी जो लेंथ है दैट इज रेसिप्रोकल टू इंटरप्लेनर स्पेसिंग ऑफ दोज प्लेन्स। ठीक है, अगर हम इसको लेके चलते हैं तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो भी हम वेक्टर लेके चल रहे हैं उसका पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे
और हम ये प्रूव करेंगे कि जो उसका मैग्नीट्यूड है वो बेसिकली हमारा इस इंटरप्लेनर स्पेसिंग के रेसिप्रोकल होगा। उसके लिए हम क्या कहते हैं, अगेन वहीं से शुरू करेंगे कि हमारे पास ये कोई क्रिस्टल के एक्सिस हैं विच आर इन द डायरेक्शन ए बी एंड सी, और सपोज ये प्लेन है जिसके कोरस्पोंडिंग हम जी वेक्टर ड्रा कर रहे हैं। ये जो प्लेन है जिसके अक्रॉस हमने ड्रा किया, और हमने क्या किया कि ये ओरिजिन है और ओरिजिन से इस प्लेन के ऊपर एक नॉर्मल ड्रा कर दिया, ठीक है। अब जब ये नॉर्मल ड्रा किया तो ऑब्वियसली सपोज ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है ये हमारी इस प्लेन के अंदर लाई करती है, तो ऑब्वियसली ये जो होगा ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये जो अल्फा होगा इट विल बी एंगल होगा, इट विल बी अल्फा। हमने जब इंटरप्लेनर स्पेसिंग का एक्सप्रेशन निकाला था उस टाइम पे भी हमने इसको निकाला था कि ये सपोज अल्फा है, मैंने किया था बी के साथ सपोज बीटा है और सी के साथ सपोज गामा एंगल बनाता है, और वहां से फिर हमने डायरेक्शन कोसाइन कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा निकाले थे, और फिर हमने प्रूव किया था कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा कोस प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, जो कि डायरेक्शन कोसाइंस की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो हम अब क्या निकालेंगे कि सपोज हमारे पास एक n यूनिट वेक्टर है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, n यूनिट वेक्टर है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। नाउ दिस g इज इक्वल टू एच ए प्लस के बी प्लस एल सी, और इसको मैंने लिख लिया कि g डॉट n, यूनिट वेक्टर अलग निकाल दिया, g अलग निकाल दिया, इज इक्वल टू एच ए प्लस के बी प्लस एल सी। यहां से अगर मैं इस यूनिट वेक्टर को निकालता हूं तो ये क्या आ जाएगा, एच ए प्लस के बी प्लस एल सी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ जी। और अगर अब यहां पे इसको छोड़ते हैं, अब आ जाते हैं डायरेक्शन कोसाइंस वाले पार्ट पे जो हमने पहले भी किया था कि इस ट्रायंगल के अंदर ये जो लेंथ है ये a बाई एच है, और अगर मैं इस a बाई एच को लेके चलूं तो इसके अंदर मेरे पास क्या आता है, डी एच के एल क्या था, a कोस अल्फा बाई एच, a cos alpha by h. Let me see. Yes, it is a cos alpha by h. Now this a cos alpha can be written as a dot n by h. a dot n is a unit vector, तो ये भी क्या हो जाएगा, a cos alpha, where alpha is the angle between a and n. a और n जो नॉर्मल है उसके बीच में जो एंगल है दैट इज अल्फा, तो हमने इसको लिया a डॉट n। अब इसको मैं लिख देता हूं a बाई एच डॉट n की वैल्यू ये पुट कर दो, ये बन जाएगी एच ए प्लस के बी प्लस एल सी डॉट प्रोडक्ट। इसको जब हम लेंगे तो क्या बन जाएगा, h बाई एच ए डॉट ए प्लस के बाई एच ए डॉट बी प्लस एल बाई एच ए डॉट सी। हमने वो प्रॉपर्टीज भी पीछे की थी कि ए डॉट ए, एच से एच कैंसिल, ए डॉट ए इज इक्वल टू 2 पाई, ये भी जीरो, तो मेरे पास ये आ गया जो सॉरी मैंने इस n की वैल्यू जो पुट की वो एच ए के बी एल सी डिवाइडेड बाय ये मैंने लिखना भूल गया था, ठीक है। और ये सारा बना और इसके डिवाइडेड बाय आ गया, मैं भी करूँ कहाँ से, ये h, तो ऊपर वाला पार्ट मेरे पास बन गया 2 पाई और डिनोमिनेटर में आ गया जी। तो अब ये क्या बना कि डी एच के एल इज इक्वल टू 2 पाई ओवर magnitude of g. This can also be written as g is equal to 2 pi over d h k l.
डी एच के एल, और आई कैन से कि दिस जी मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डी एच के एल, जो कि मैं शुरू में कह रहा था कि ये इसके परपेंडिकुलर जो जो जी का मैग्नीट्यूड है इट शुड बी प्रोपोर्शनल टू रेसिप्रोकल ऑफ इंटरप्लेनर स्पेसिंग। इसका मतलब जो हम एजम्पशन शुरू में लेके चले थे, जो रेसिप्रोकल लैटिस की प्रॉपर्टी शुरू में बताई थी कि ये वो है जिसके अंदर जो हमारे पास वेक्टर्स हैं दे आर परपेंडिकुलर और दे आर नॉर्मल टू द प्लेन इन द डायरेक्ट लैटिस, और उनका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरप्लेनर स्पेसिंग, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरप्लेनर स्पेसिंग। तो पिछले पे हमने पहला पॉइंट प्रूव किया, और इस प्रॉपर्टी के अंदर हमने दूसरा जो पॉइंट है वो प्रूव किया। ठीक है, तो here these are different properties जो अभी तक हमारे पास अनडिराइव्ड थी या अनप्रूव्ड थी, उनको हमने यहाँ पे प्रूव भी कर दिया। और ये डेरिवेशंस हैं, ये कई बार आपके पास फाइनल एग्जाम में पूछ ली जाती है। नाउ मूविंग अहेड, अब हम दूसरा इसका पार्ट करेंगे कि अगर अभी तक हमने किया था कि इफ द vectors of direct lattice are known, then how can we derive a reciprocal lattice vectors? How can we derive reciprocal lattice vector? Now we will do कि suppose reciprocal lattice vectors are given, then how to derive direct lattice vectors? How to derive direct lattice vectors? उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने किया हुआ है, मैं पहले वो सारे लिख दूं। हमने कल किया था जो कैपिटल ए है दैट इज 2 पाई बी क्रॉस सी ओवर ए डॉट बी क्रॉस सी, एंड बी इज 2 पाई सी क्रॉस ए ओवर ए डॉट बी क्रॉस सी, एंड कैपिटल सी इज 2 पाई ए क्रॉस बी ओवर ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, ये हमने डिराइव किए थे, कल किया था, पिछले लेक्चर के अंदर हमने इसको प्रूव किया था। अब हम क्या करेंगे, लेट अस सपोज ए क्रॉस बी क्या होगा, 2 पाई इंटू 2 पाई स्क्वायर इंटू बी क्रॉस सी क्रॉस ए, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय a डॉट b क्रॉस c इंटू a डॉट b क्रॉस c, तो a डॉट b क्रॉस c इट्स स्क्वायर, और हमें पता है ये वैल्यू क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड है, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल है, तो हम इसको लिख देंगे 2 पाई स्क्वायर बाय v स्क्वायर इंटू, अब इसको खोलो, b क्रॉस c क्रॉस a, चार वेक्टर का जो प्रोडक्ट है, अगर इसको खोलते हैं तो इट बिकम्स c of a dot b cross c minus a of b cross c dot c, ठीक है, हाँ ये बनेगा। नाउ b क्रॉस c डॉट c अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है जिसमें से दो हमारे पास सेम है, दैट इज जीरो, तो पहला के हिसाब से हमारे पास क्या बन गया, 2 पाई स्क्वायर बाय v स्क्वायर c ऑफ a डॉट b क्रॉस c, और हमें पता है a डॉट b क्रॉस c इज v, क्योंकि ये तो जीरो बन गया v, तो ये बन जाएगा हमारे पास v, और इस v से एक v कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा a क्रॉस b क्या आ जाएगा, a क्रॉस b इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर बाय v इंटू c, और c की वैल्यू अगर मैं यहाँ निकालूं तो c की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई स्क्वायर बाय v इंटू a क्रॉस b इंटू c केम आउट टू सॉरी c केम आउट टू बी, ये उल्टा ये वाला उल्टा हो जाएगा, तो c क्या हो जाएगा, इट विल बी v ओवर 2 पाई स्क्वायर इंटू a क्रॉस b, ठीक है, इसको यहां रोको, इसको अभी यहां रोक लो। अब हम निकालते हैं, इसको मैं थोड़ा सा रख लेता हूं क्योंकि इनकी हमें जरूरत पड़ेगी बार बार।
आगे हम चलें तो हम निकालते हैं ए क्रॉस बी डॉट सी, ए क्रॉस बी डॉट सी। तो ये क्या बनेगा, इट विल बी ए क्रॉस बी की वैल्यू तो यही पुट हो जाएगी, ए क्रॉस बी क्या होगा 2 पाई स्क्वायर बाय वी इंटू सी डॉट कैपिटल सी। कैपिटल सी हमारे पास क्या था 2 पाई सी क्रॉस ए ओवर ए डॉट बी क्रॉस सी। जस्ट a minute, I can see a cross b dot c, तो c is equal to no, c is not equal to c cross a, c is equal to a cross b, a cross b over a dot b cross, ये c की वैल्यू आ गई, ये a cross b की वैल्यू यहाँ से आ गई, ये हमने पुट कर दी और हमारे पास ये आ गया। तो ये बन गया 2 पाई क्यूब ओवर v इंटू सी डॉट ए क्रॉस बी एंड ओवर ए डॉट बी क्रॉस सी, ये इक्वल होंगे, ये इक्वल होंगे। तो यहां से आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे और यहां से मेरे पास ये बन जाएगा 2 पाई क्यूब बाई वी, 2 पाई क्यूब बाई वी। अब मैं यहां से अगर v बाई 2 पाई स्क्वायर की वैल्यू निकालू, v बाई 2 पाई स्क्वायर, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो मेरे पास क्या बन गया v बाई 2 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई तो यहीं रह जाएगा क्योंकि 2 पाई स्क्वायर इधर चला गया, 2 पाई यहां रह गया, v भी इधर चला गया, इंटू 1 ओवर a क्रॉस b डॉट सी डॉट सी। ये v बाय 2 पाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो इसके अंदर पुट कर दो, तो मेरे पास क्या बन गया कि c इज इक्वल टू 2 पाई ओवर a क्रॉस b डॉट c इंटू a क्रॉस b। ये स्मॉल c है, ये कैपिटल A कैपिटल B, एंड हमें पता है a डॉट b क्रॉस c इज इक्वल टू b डॉट c क्रॉस a इज इक्वल टू c डॉट a क्रॉस b। तो ये सारी एक जैसी हैं, ये तो वॉल्यूम हो गया, ये a क्रॉस b c के साथ आ गया। ऑन द सेम लाइन वी कैन प्रूव कि a इज इक्वल टू 2 पाई b क्रॉस c ओवर a डॉट b क्रॉस c and b is 2 pi c cross a over a dot b cross c। तो क्या है, ये जो c है और ये जो c है इनमें क्या फर्क है, you can see the analogy, you can see the analogy, सिर्फ कैपिटल और स्मॉल इंटरचेंज हो गए, ये ए वाला और ये बोथ आर सेम, बोथ आर सेम, सिर्फ कैपिटल और स्मॉल इंटरचेंज हो गई, एंड ये और ये बोथ आर सेम, सिर्फ स्मॉल कैपिटल इंटरचेंज हो गई। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलता है, एक्सप्रेशंस आर सेम वेदर वी आर चेंजिंग इट फ्रॉम डायरेक्ट लैटिस टू रेसिप्रोकल लैटिस और रेसिप्रोकल लैटिस टू डायरेक्ट लैटिस, द कन्वर्जन इज सेम। व्हेन कन्वर्जन इज सेम तो वी कैन से डायरेक्ट लैटिस अपनी ही रेसिप्रोकल लैटिस की रेसिप्रोकल लैटिस है, डायरेक्ट लैटिस अपनी रेसिप्रोकल लैटिस की रेसिप्रोकल लैटिस है। इसका मतलब डायरेक्ट लैटिस की जो रेसिप्रोकल लैटिस होगी वो उसकी रेसिप्रोकल लैटिस के लिए डायरेक्ट लैटिस होगी, दोनों एक दूसरे की रेसिप्रोकल लैटिस हैं। अगर a और b, अगर मैं a कहूं डायरेक्ट लैटिस, b कहूं रेसिप्रोकल लैटिस, तो a b के लिए रेसिप्रोकल है और b a के लिए रेसिप्रोकल है, दोनों एक दूसरे के लिए सेम तरह से काम करते हैं, एंड इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई कैन से जो इसका कंक्लूजन है कि हर एक लैटिस अपनी ही रेसिप्रोकल लैटिस की रेसिप्रोकल लैटिस है। इट्स एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इट्स एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो अब तक हमारे पास क्या था कि डायरेक्ट लैटिस वेक्टर नोन है,
हमें रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर निकालने हैं। आज वाले लेक्चर में हमने क्लियर किया कि रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर नोन है, डायरेक्ट लैटिस के वेक्टर निकालने हैं। हम ये देखेंगे कि दोनों, हम देखेंगे क्या, वी हैव सीन कि दोनों ही जो जो एक्सप्रेशंस हैं बोथ आर सेम, बोथ आर सेम, जस्ट इंटरचेंज स्मॉल विद कैपिटल, यू कैन गेट द सेम एक्सप्रेशन, सेम एक्सप्रेशन। तो चाहे हम डायरेक्ट से रेसिप्रोकल निकालें, चाहे हम रेसिप्रोकल से डायरेक्ट निकालें, एक्सप्रेशन विल बी सेम, एक्सप्रेशन विल बी सेम। तो दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया, हमने प्रॉपर्टीज की। एक प्रॉपर्टीज हमने प्रूव की कि जो रेसिप्रोकल लैटिस का वेक्टर है उसकी जो डायरेक्शन है दैट विल बी नॉर्मल टू एचकेएल प्लेन, पहला। दूसरा हमने किया कि जो रेसिप्रोकल लैटिस का वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इंटरप्लेनर स्पेसिंग के रेसिप्रोकल होगा, जो डायरेक्ट लैटिस में हम जिस प्लेन की बात कर रहे हैं, एचकेएल प्लेन की बात कर रहे हैं। और तीसरा हमने प्रूव किया कि हर एक जो लैटिस है वो अपनी ही रेसिप्रोकल लैटिस की रेसिप्रोकल है। इसका मतलब डायरेक्ट लैटिस एंड रेसिप्रोकल लैटिस आर इंटरकन्वर्टिबल टू देयर रेसिप्रोकल्स। So this is all about today's lecture, and we will meet in the next lecture in the next time. Okay, thank you.